Hello students, I am Vikrant sir. Welcome to the social studies class. Students, until now you have studied about 6 physical divisions of India, just like Himalaya, plateaus, plains, coastal plains, etc. You have studied the lessons soil, forest, industries, transport, communication, mineral resources. So, these lessons were about geography of India. Understood? So, these lessons were about the earth. No? So, in geography, we study about earth. From today, we are going to start the study of Indian history. So, what is history? History is the systematic study of past events and great persons. मीन्स हिस्ट्री क्या है? जो बीते समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनकी और जो ग्रेट लीडर्स हुए उनकी सिस्टमैटिक स्टडी हम हिस्ट्री में करते हैं. सो इन 4th स्टैंडर्ड मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री. ओके, मीन्स इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई की, उनमें कौन कौन से ग्रेट लीडर्स ने हिस्सा लिया, ये ज़्यादातर हम मेनली इस 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं. और बाद में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बी रेडी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. So let's start the lesson. Here are some pictures of great personalities. Can you identify them? Who is this? Who is he? Mahatma Gandhi. This picture, Pandit Jawaharlal Nehru. And this, Akbar, King Akbar. Okay, so let's read about them. He entered in Indian politics in 1915. Mahatma Gandhi. Second, he was the first Prime Minister of India. Pandit Jawaharlal Nehru. He was a great king of medieval India, Akbar the Great. Okay, so Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Akbar. Now let's start the lesson. First I will read word to word. You have to listen attentively and you have to know what to read to which word. Okay, and then I will tell you in easy Hindi language so that you know our India's history. Okay, so let's start the lesson. India has a glorious past. India has a glorious past. इंडिया का इंडिया का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है. The Indian history is broadly divided into 3 periods. The ancient period before 600 CE, the medieval period from 700 CE to about 1750 CE, and the modern period from 1750 to 1947. So जैसे स्कूल में हम आते हैं तब से लेकर
स्कूल की छुट्टी होती है तब तक हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग मतलब वो टाइम ऐसे डिवाइड करते हैं। वैसे ही इंडिया की हिस्ट्री, भारत के इतिहास की पढ़ाई करने के लिए भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पुराना, मिडल और मॉडर्न। तो एंशियंट पीरियड मतलब कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई? बिफोर 600 CE। याद रखें, CE मतलब होता है कॉमन ईरा। ओके, सो अभी के लिए आप इतना ही याद रखें, CE मतलब कॉमन ईरा। तो एंशियंट पीरियड बिफोर 600 CE, ये बात आपको याद रखनी है। एंशियंट पीरियड कहाँ से कहाँ तक? 600 CE के पहले का जो समय था वो एंशियंट पीरियड। द मेडिवल पीरियड फ्रॉम 700 CE टू अबाउट 1750 CE। 700 CE से लेकर 1750 CE तक मेडिवल पीरियड। और मॉडर्न पीरियड कहाँ से कहाँ तक? 1750 से लेकर 1947 तक। 1947 क्या हुआ था? 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी अंग्रेज़ों से। याद है आपको? पता है? ओके, आई एम रीडिंग दिस वंस अगेन, यू लिसन अटेंटिवली। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट। The Indian history is broadly divided into 3 periods: the ancient period before 600 CE, the medieval period from 700 CE to about 1750 CE, and the modern period from 1750 to 1947. Understood this paragraph? Okay, let's move further. Now let's study each period one by one in details. So first we study ancient period. The earliest known traces of human life in India are found at Bhimbetka. Bhimbetka is the name of place. तो मानवीय जीवन के निशान सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका नाम के प्लेस पर। इट इज़ नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भीमबेटका इज़ नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोई बस्ती करके नहीं रह सकते, ये विज़िट करने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। ओके, मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बस ये बात याद रखें। Historians say that there was a very advanced civilization near the Indus River, now in Pakistan, around 2500 BCE. तो याद रखें, BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा। तो हिस्टोरियंस मतलब जो लोग जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, मतलब बीते समय में क्या क्या घटनाएं हुई, लोग कैसे जीते थे, क्या क्या करते थे, इसकी जो पढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोरियंस। ओके, तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि 2500 साल पहले इंडस रिवर के किनारे पर एक बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, मतलब प्रगत जीवन शैली प्रेजेंट थी। दिस इज़ कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के किनारे पर जो सिविलाइजेशन थी उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी के लिए शॉर्ट में ही याद रखें, बड़े क्लासेस में आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया में कौन सी सिटी मिली?
हड़प्पा। मोहेंजोदारो is another important city found in this area। हड़प्पा के पास ही मोहेंजोदारो नाम की भी सिटी मिल गई। मतलब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ज़मीन को खोद के वहाँ पहले के लोग कैसे रहते, ज़मीन को खोदने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना उनकी, पहले के ज़माने के लोगों की, तो उन चीज़ों से घरों के अवशेषों से वो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें 2 सिटीज़ मिली, हड़प्पा और मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो एक मूवी भी है ना, आप देख लेना, ओके। तो इन दिस एरिया दिस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन को, सिविलाइजेशन मतलब लाइफस्टाइल, इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? सो लेट्स रीड एंशिएंट पीरियड वंस अगेन। फर्स्ट लेट्स सी द मैप। दिस इज द मैप ऑफ हड़प्पन civilization, okay। This is India and this is the Pakistan side, okay। So you can find here Harappa, you find at home different places in Harappan civilization, okay। Here is Dholavira, Lothal, Mehergarh, Taxila, and do you find Harappa or Indus River? Can you find Indus River? Indus River means सिंधु रिवर, ओके। सिंधु एक नदी है ना, उसी को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ओके। तो आप देखें कहाँ पर कौन सा प्लेस मिलता है, तो आप घर में ये ढूंढे। अभी हम एंशिएंट पीरियड फिर से रीड करते हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुने। The earliest known traces of human life in India are found at Bhimbetka. Now you have to look at the words which I am reading. It is now a World Heritage Site. Historians say that there was a very advanced civilization near the Indus River. Now where is Indus River? Indus River is in Pakistan. This is called the Indus Valley Civilization. Harappa was the first city discovered in India. Mohenjo-daro is another important city found in this area. This civilization is also known as the Harappan civilization. So this was about ancient period. Now let's see Indus Valley civilization. So I am reading, you listen attentively. The first known urban society in India was Indus Valley civilization. It was located along the Indus River and its tributaries. So इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर बसी हुई थी? इंडस रिवर और उसकी जो उपनदियाँ थी उन नदियों के किनारों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई थी। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा यमुना डाउब टू गुजरात एंड बियॉन्ड अप टू द नॉर्दर्न अफगानिस्तान। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन गंगा यमुना डाउब मतलब डोआब मतलब गंगा और यमुना के 2 रिवर के बीच का प्लेस, 2 रिवर के बीच के प्लेस को बोलते हैं डोआब। तो गंगा यमुना के बीच में जो प्रदेश था वहाँ से लेकर गुजरात तक और नॉर्दर्न साइड में अफ़गानिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान के उस पार तक भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। देन द इंडस वैली पीपल बिल्ड वेल प्लान्ड सिटीज़ with important buildings
such as the Great Bath and Granary. सो उस ज़माने में भी उतने सालों पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर बनाए थे लोगों ने वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके के थे, मतलब वो लोग डेवलप्ड थे। ग्रेट बाथ मतलब आज के ज़माने का स्विमिंग पूल, और ग्रेनरी मतलब गोडाउन। सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एंड अदर रिमेन्स ऑफ द सिविलाइजेशन टेल अस अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दैट सोसाइटी। तो उस ज़माने के जो भी हमें ग्रेनरी मिली, सील्स मतलब सिक्के, पॉटरी मतलब बर्तन, ज्वेलरी और बाकी जो चीज़ें मिली उससे हमें उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। It also gives us clues about the life of the people during that period। मतलब जो भी चीज़ें मिली उससे हमें उन लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। कौन से लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे उनके बारे में। और वो लोग थे ना, वो बहुत उनकी थिंकिंग पावर, उनकी प्लानिंग, रहने की स्टाइल बहुत मॉडर्न थी उतने सालों पहले भी, हज़ारों सालों पहले भी। जैसे हम अभी मॉडर्न तरीके से रहते हैं वैसे ही उनकी लाइफस्टाइल थी। सो लेट्स रीड इंडस वैली सिविलाइजेशन वंस अगेन। द फर्स्ट नॉन अर्बन सोसाइटी इन इंडिया was the Indus Valley Civilization. It was located along the Indus River and its tributaries. It extended from the Ganga Yamuna Doab to Gujarat and beyond up to the northern Afghanistan. The Indus Valley people built well-planned cities with important buildings such as the Great Bath and the Granary. Seals, pottery, jewelry and other remains of this civilization tell us about the lifestyle of the people who lived in that city, in that society. It also gives us clues about the life of the people during that period. Now let's move further. Look at this picture. This is a picture of the Great Bath. This is just like a swimming pool ना, and this is ancient seal, मतलब ये एक प्रकार का कॉइन था उस ज़माने का। Understood? Now let's move further and study about Aryans. So listen attentively. Around 1500 BCE, some tribes migrated in groups from Central Asia. मतलब 1500 BCE में कुछ प्रजाति के लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए। They were known as the आर्यंस। मतलब आर्यंस इंडिया में कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। और वो कब आए थे? 1500 BC के आसपास। This group came to India and settled in the northwest frontier province and Punjab, which was then called the Sapta Sindhu. What is the Sapta Sindhu mean? A region of 7 rivers. वो इंडिया में आए कौन? आर्यंस। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और पंजाब में उन्होंने बस्तियाँ बनाई, वो रहने लगे। They drove away the Dasas or Dasyus
लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते थे उनको दासाज या दास्यूज कहते थे। आर्यंस ने उन्हें वहाँ से भगाया। दे लिव्ड देयर फॉर मैनी सेंचुरीज। आर्यंस नॉर्थ इंडिया में और पंजाब में बहुत सैकड़ों सालों तक रहे। एंड लेटर बिल्ट सेटलमेंट्स, और बाद में उन्होंने बस्तियाँ बनाई। अलॉन्ग द गंगा एंड यमुना रिवर्स, मतलब आर्यंस ने अपनी सेटलमेंट्स मतलब अपने गांव बसाए कहाँ? गंगा और यमुना रिवर के किनारों पर आसपास। दे ग्रीव क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया और एनिमल्स पालना भी शुरू किया। दे बिलीव्ड इन ओपन एयर सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस। ओपन एयर सेरेमनीज मीन्स जो खुले आसमान के नीचे कोई भी फेस्टिवल्स वो एक साथ सेलिब्रेट करने लगे और वहाँ पर बलि देने लग गए। सैक्रिफाइसेस मतलब किसी जानवर की बलि देना, उसमें भी उनका विश्वास था। मतलब गॉड को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वो बलि देते थे। द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यंस इज एसोसिएटेड विद द वेदास। The Aryans were the first to write in Sanskrit. So, do you know Sanskrit is a language? Just like we speak in Marathi, English, वैसे ही संस्कृत भी क्या है? एक लैंग्वेज है। और वो आर्यंस थे जिन्होंने संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया सबसे पहले। Many great books such as the Vedas, Upanishads and epics like Ramayana and Mahabharata were written during this period. और आर्यन के काल में ही ये बड़े बड़े महान बुक्स थे, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये बड़े बड़े बुक्स, ग्रेट बुक्स उनके काल में ही लिखे गए। किसके? आर्यंस के। These books are helpful in understanding the people and civilization of that time. इन्हीं बुक से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन्हीं बुक से पता चलता है कि उस ज़माने में, उस काल में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। Since the Vedas were written during this period is also known as the Vedic age. मतलब जिस काल में आर्यंस रहते थे उसी काल में वेद लिखे गए। अगर आपको वेद कितने प्रकार के हैं ये नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछे, मम्मी पापा से, कि कौन कौन से वेद होते हैं। तो वो वेद आर्यन के काल में लिखे गए, इसीलिए उस काल को, उस पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स रीड दिस आर्यंस वंस अगेन। Aryans around 1500 BCE, some tribes migrated in groups from Central Asia. They were known as the Aryans. This group came to India and settled in the northwest frontier province and Punjab, which was then called the Saptasindhu. Saptasindhu means a region of 7 rivers. They drove away the Dasas or Dasyus lived in North India. They lived there for many centuries and later built settlements along the Ganga and Yamuna rivers.
अभी मैं पेन नहीं रखूँगा वर्ड पर, आपको देखना है स्क्रीन पर मैं कौन सा वर्ड रीड करता हूँ, ठीक है। दे ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। दे बिलीव्ड इन ओपन एयर सेरेमनीज एंड sacrifices. The Vedic civilization of the Indo-Aryans is associated with the Vedas. The Aryans were the first to write in Sanskrit. Many great books such as the Vedas, Upanishads and epics like Ramayana and Mahabharata were written during this period. These books are helpful in understanding the people and the civilization of that time. Since the Vedas were written during this period is also known as the Vedic age. So this was about Aryans. Now let's move further. Now next point is महाजनपदाज। महाजनपद मराठी में अगर बोलेंगे महाजनपद। So let's study about महाजनपदाज. A number of kingdoms and republics emerged across the Indo-Gangetic plains and southern India. मतलब गंगेटिक मतलब जो गंगा रिवर थी उसका जो प्लेन था, उसका जो मैदान था वहाँ और साउदर्न इंडिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड 16 महाजनपदाज. व्हाट डज महाजनपदाज मीन्स? ग्रेट इंडियंस. No, not great Indians, great kingdoms. Mahajanpadas means Mahajanpad means a great kingdom. Okay, बहुत बड़ा राज्य existed in North India. ऐसे उस काल में ऐसे कितने ग्रेट किंगडम्स थे, कितने महाजनपदास थे? 16. उनके नाम क्या है? ये राज्यों के नाम है। ओके, मतलब किंगडम्स के नाम है। दे वेर अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार एंड कंबोज। वैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो आ की मात्रा ज़्यादा लगती है उसमें, ठीक है। जैसे कि हमने अंग ऐसे पढ़ा, तो वो इंग्लिश में पढ़ोगे जैसा है वैसे पढ़ोगे तो अंगा ऐसा होता है। जैसे कि महाराष्ट्र मराठी में बोलते हैं हम और महाराष्ट्र इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो ओरिजिनल नेम क्या है? महाराष्ट्र। ओके, वैसे ही हमने ये ओरिजिनल नेम पढ़े। एक बार रीड करते हैं 16 महाजनपदास के नेम: अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज. These were the 16 Mahajanpad during that period. They had been at one point of time or other conquered by the rulers of Magad, one of the most powerful kingdoms of North India, which was at the center of Gangetic plain. और इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा राज्य था? मगध।
और मगध ने इन पर कभी ना कभी अटैक किया था और उनको जीत लिया था। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स रीड महाजनपदास वंस अगेन. You listen attentively and look at the word. A number of kingdoms and republics emerged across the Indo-Gangetic plains and southern India. During this period, 16 Mahajanpadas, great kingdoms, existed in North India. They were Anga, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार and Kamboj. These were the 16 great kingdoms during that time. They had been at one point of time or another conquered by the rulers of Magad, one of the most powerful kingdoms of North India, which was at the center of the Gangetic plains. Okay, understood Mahajanpadas? Now let's move further. Let's read infobable. Kautilya is also identified as Vishugupta as well as Chanakya. Means कौटिल्य. चाणक्य आपने नाम सुना ही होगा. तो चाणक्य के और दो नाम थे. कौन से? कौटिल्य, विश्वगुप्त. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now this is Alexander the Great. This is the name of a king. एक किंग का नाम है, एक सरदार का नाम है. ओके, अलेक्जेंडर द किंग. उसके बारे में हम जानकारी जानेंगे अभी. सो लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अलेक्जेंडर द ग्रेट. ओके, now let's read the information. In the 4th century BCE, the Greeks and the Iranians fought for the supremacy over the world. 4th century BCE में जो ग्रीक लोग थे और ईरानियंस लोग थे, वो दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे. Under the leadership of Alexander of Macedonia, the Greeks finally destroyed the Iranian Empire. ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ये थे वो बहुत शूरवीर थे, महान योद्धा थे, और उनके लीडरशिप में ग्रीक लोगों ने ईरानियन लोगों का ईरानियन लोगों का एम्पायर ख़त्म किया. He conquered the Kabul Valley and the hilly areas of the northwest frontier and reached Ohind near Attock in 326 BCE. उन्होंने काबुल वैली जीत ली और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो भी जीत लिया और कहाँ पहुँचे? अटॉक के पास ओहिंद में. कब? 326 BCE में. अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस ऑफ पंजाब बट वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज ब्रेवरी. अलेक्जेंडर ने पंजाब के किंग पोरस को हराया, लेकिन किंग पोरस भी बहुत महान योद्धा थे. उनकी वीरता ने अलेक्जेंडर को इम्प्रेस कर दिया था. अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक एज हिज सोल्जर्स वेर टायर्ड ऑफ फाइटिंग. अभी अलेक्जेंडर
पंजाब के पोरस किंग को जीता था अलेक्जेंडर ने, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका, इंडिया में आगे नहीं बढ़ सका। क्यों? क्योंकि उसको वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसके जो सोल्जर्स थे वो बहुत थक चुके थे। He died on his way home at Babylon in 323 BCE। और घर मतलब अपने राज्य में लौटते समय ही उनकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई 323 BCE में। आप ये कैसे समझोगे 323 BCE? जैसे हम अभी 2021 कहते हैं ना साल को, वैसे 323 BCE वो एक पीरियड है, मतलब पुराना पीरियड है। He was only 33 years old when he died। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 33 ईयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। So this was about Alexander the Great. I am reading once again. You have to listen attentively and look at the word. In the 4th century BCE, the Greeks and the Iranians fought for the supremacy over the world. Under the leadership of Alexander of Macedonia, the Greeks finally destroyed the Iranian Empire. He conquered the Kabul Valley and the hilly areas of the northwest frontier and reached Ohind near Attock in 326 BCE. Alexander defeated King Porus of Punjab but was impressed with his bravery. Alexander had to go back as his soldiers were tired of fighting. He died on his way home at Babylon in 323 BCE. He was only 33 years old when he died. Okay, so this was about Alexander the Great. Now let's move to the next king. Now let's study about Chandragupta Maurya. He was also a great king. Chandragupta Maurya. Okay, Chandragupta Maurya became the ruler of Magad in 322 BCE. चंद्रगुप्त मौर्य मगध के किंग बने कब? 322 BCE में। He founded a new empire, the Mauryan Empire, with the help of his advisor कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक अलग राज्य स्थापन किया जिसे मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। और ये उन्होंने किसकी मदद से किया, किसके गाइडेंस से किया? उनके एडवाइज़र, उनके गुरु कौटिल्य। कौटिल्य के दूसरे दो नाम कौन से थे आपको याद है? एक चाणक्य और दूसरा विश्वगुप्त। आपने सीरियल देखी क्या चंद्रगुप्त मौर्य? अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। इंडिया गेन्ड पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर हिज रूल। मतलब पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था इंडिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या शपथ ली थी कि मैं पूरे इंडिया को एक करूँगा, पूरे इंडिया में एकता और अखंडता लाऊंगा। और उन्होंने ये करके भी दिखाया।
So I am reading once again Chandragupta Maurya. You listen attentively and look at the word. Chandragupta Maurya became the ruler of Magad in 322 BCE. He founded a new empire, the Mauryan Empire, with the help of his advisor Kautilya. India gained political unity for the first time under his rule. Now let's study about the next great king, Ashoka the Great. Chandragupta's grandson Ashoka became the emperor after he formerly crowned himself in 273 BCE and extended the boundaries of his empire. So, Chandragupta's grandson Ashoka. Ashoka was the grandson of Chandragupta. He became the emperor. After Chandragupta Maurya, Ashoka became the emperor. And in which year 273 BCE में अशोका राजा बने और अपने एम्पायर की बाउंड्रीज बढ़ाई, मतलब अपना राज्य और बड़ा किया. He fought the war of Kalinga in 261 BCE. उन्होंने 261 BCE में कलिंगा की लड़ाई लड़ी, but became so upset by the bloodshed. लेकिन उस लड़ाई में जो भी रक्तपात हुआ, जो भी खून बहा और जाने गई, वो देखकर वो बहुत अपसेट रह गए और उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से वो कभी भी वार नहीं लड़ेंगे, कोई भी लड़ाई किसी भी राजा के साथ नहीं लड़ेंगे. He accepted Buddhism and helped spreading it in India and other Asian countries. उन्होंने बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया, मतलब बाकी एशियन कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम किया. अशोका गॉट इंस्क्रिप्शंस मेड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स so that his message could reach the people. और वो उन्होंने अपना मतलब गौतम बुद्ध का शांति का संदेश पूरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पिलर्स बनवाए और रॉक्स पर उन्होंने ऐसे अपना मैसेज लिखा जगह जगह पर, ताकि लोग उसे पढ़े और शांति से अपनी लाइफ जिए. He created a new post called Mahamatra, Minister of Morality, in his kingdom during his reign. उन्होंने अपने काल में अपने गवर्नमेंट सिस्टम में एक नई पोस्ट का निर्माण किया. उस पोस्ट का नाम महामात्रा था और महामात्रा का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ मोरालिटी. मोरालिटी मीन्स नैतिकता, अच्छी लाइफ जीना, किसी को बिना परेशान किए, किसी को बिना हानि पहुँचाए अपनी लाइफ जीना, इसको बोलते हैं मोरालिटी. Ashoka's 4 lion motif found on the top of one of his pillars is the national emblem of India. ये हमारी क्या है, नेशनल एम्ब्लेम है और ये अशोका के पिलर से ही ली गई है. अगर आप
कॉइन्स देखते हैं, नोट देखते हैं, तो उसमें ये अशोका की 4 लायन मोटिव की पिक्चर रहती है। और ये हमारी क्या है, नेशनल एम्ब्लेम है। देखा आपने ये कभी? यस, अगर आप नोट पर या कॉइन्स पर देखते हैं तो, या किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पर देखते हैं तो ये नेशनल एम्ब्लेम वहाँ पर रहती है। सो दिस वाज अबाउट अशोका द ग्रेट। नाउ लेट्स रीड वंस अगेन। Look at the words. Ashoka the Great. Chandragupta's grandson Ashoka became the emperor after he formally crowned himself in 273 BCE and extended the boundaries of his empire. He fought the War of Kalinga in 261 BCE but became so upset by the bloodshed and loss of life that he decided not to fight any war after that. He accepted Buddhism and helped spreading it in India and other Asian countries. Are you looking at the words ना? वर्ड्स की तरफ देखना है जो भी मैं वर्ड्स रीड कर रहा हूँ। Ashoka got inscriptions made on rocks and pillars so that his message could reach the people. He created a new post called Mahamatra, Minister of Morality, in his kingdom during his reign. Ashoka's 4 lion motif found on the top of one of his pillars is the national emblem of India. Now let's move to the next point. The next point is the golden age of the Guptas. गुप्ता एक सरनेम है। गुप्ता घराने के जो राजा थे उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आफ्टर द मौर्याज द गुप्ताज रूल्ड ओवर इंडिया इन 4th and 5th century CE। मौर्याज के बाद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य घराने के जो राजा थे उनके बाद इंडिया पर किसका राज आया? गुप्ताज का, गुप्ता घराने का। दे वेर वेरी पॉपुलर रूलर्स एंड इंडिया बिकेम ए रिच कंट्री अंडर देयर रूल। गुप्ताज के काल में इंडिया बहुत अमीर देश बन गया था और वो बहुत पॉपुलर मतलब लोकप्रिय राजा थे। कौन? गुप्ताज। दिस पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज और द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। सो हुज पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया? गुप्ताज एज, गुप्ताज पीरियड मतलब गुप्ताज घराने के राजाओं का जो काल था इंडिया का, उसको इंडिया के हिस्ट्री का क्लासिकल एज और गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उनके काल में इंडिया बहुत क्या बना? अमीर बना था। It was the most prosperous age in the Indian history. Art, culture, science, mathematics, astronomy and grammar developed by leaps and bounds during this period. मतलब गुप्ताज के काल में इंडिया का हर क्षेत्र में विकास हुआ, जैसे कि आर्ट मतलब कला,
कल्चर मतलब संस्कृति, साइंस मतलब विज्ञान, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी मतलब ज्योतिष नहीं, ये ग्रहों की स्टडी, प्लैनेट्स की स्टडी एस्ट्रोनॉमी, और ग्रामर मतलब भाषाओं का विकास। इन पूरे क्षेत्रों में इंडिया का बड़ी मात्रा में विकास हुआ गुप्ताज के पीरियड में। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स read once again. After the Mauryas, the Guptas ruled over India in the 4th and 5th century CE. They were very popular rulers and India became a rich country under their rule. This period is called the Classical Age or the Golden Age of ancient India. It was the most prosperous age in the Indian history. Art, culture, science, mathematics, astronomy and grammar developed by leaps and bounds during this period. Okay, so this was the golden age of the Guptas. So until now we were studying Indian history and ancient period of Indian history. So in this video we will stop now. We are going to stop now. Let's revise once again what we have studied in this video. Ancient period, Bhimbetka, Harappa, Mohenjo-daro, Harappan civilization. Then Indus Valley civilization. Indian Indus Valley civilization was advanced civilization. They built great bath, granary, and their cities were well planned. Then we have studied about Aryans. Aryans came to India from Central Asia, and they drove away Dasas from the North India. Many great books like Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata were written during Aryan's period. Vedas were written during Aryan's period, therefore that period is known as Vedic age. Then we have studied Mahajanpadas. Which were 16 Mahajanpadas? Anga, Magad, Vajji, Malla, Kashi, Koshal, Vatsa, Chedi, Kuru, Panchal, Shursen, Matsya, Avanti, Asmak, Gandhar and Kamboj. These were 16 Mahajanpad. Then Alexander the Great. Defeated King Porus of Punjab. Then he died on his way home to on his way at Babylon. बेबीलोन में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो गई. देन वी हैव स्टडीड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द रूलर ऑफ मगध. ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर and India gained political unity for the first time under his rule. Then Ashoka the Great. Ashoka was Chandragupta Maurya's grandson. He fought the war of Kalinga but was upset by the bloodshed and the loss of life in that battle. So Ashoka accepted Buddhist religion. Okay, and Ashoka's 4 lion motif is our national emblem. Then the golden age of the Guptas. The Guptas were very popular rulers and India became very rich country
in Gupta's period. The period of the Guptas is called Classical Age or the Golden Age of ancient India. Okay, in every field India developed during Gupta's period. Okay, art, culture, science, mathematics, astronomy, grammar developed in big amount. Okay, so this was about the ancient period. In next video we will study about medieval period. Then we will study about modern period. Okay, are you looking at the झलक देख रहे हो आप लोग? Okay, this here our lesson will end. Okay, so चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी आप ये वीडियो अच्छे से देखें और एंशिएंट पीरियड की जानकारी याद रखें. ओके, बाय.